Today I will discuss some few questions on inverse trigonometry in which we have to find the value of x, right? So let us start with the first question. Cos of tan inverse of x equal to sine of cot inverse of 3 by 4, right? So if we convert this cot inverse into sine, then this sine inverse will cancel out with the sine, and similarly if we convert this into cos inverse, then this inverse will be removed, right? So what will we do? First of all, we will make a triangle here to find the value of the third parameter here, because we know that cot inverse of theta, cot inverse of 3 by 4 can be written as 3 by 4 equal to cot theta, right? Now we know that tan theta is perpendicular by base, so cot theta will be base upon perpendicular. So base is 3 and this is 4. You can write this 3k and 4k and find the value of hypotenuse, that is 5k, or simply 5, because we are proportional over, right? Now we have to find the value of sine here, so we can say that sine theta will be equal to, if this angle is theta, right, sine theta will be equal to perpendicular by hypotenuse, that means it will be 4 by 5. So we can say that theta is equal to sine inverse of 4 by 5, right? So we can write this right hand side as, I am taking the left hand side as it is. This we can write this as sine inverse of 4 by 5, right? Now this sine cancel out, so we have cos of tan inverse of x equal to 4 by 5. Now I am taking this cos to this side, so we have tan inverse equal to cos inverse 4 by 5. Now we have to find the value of x, for which this tan inverse equal to this cos inverse of 4 by 5. So again we make a triangle here in which this angle is phi. We assume that cos inverse of 4 by 5 equal to phi, the 4 by 5 equal to cos phi, right? So we want the value of tan, so we can say that in this triangle tan phi will be, if this cos phi is 4 by 5, that means base upon hypotenuse, so this come out to be 3 by applying Pythagoras theorem. So we can say that tan in phi here is perpendicular by base, that means 3 by 4, so phi can be written as tan inverse of 3 by 4. So tan inverse of x equal to tan inverse of 3 by 4 here. On comparing the angle, we can say that 3 by 4, x is about to be 3 by 4. तो हमने कुछ नहीं किया, कंपेयर किया और सिस्टम को सेपरेट कर दिया, राइट? Second question. Now in this question we have x that which is unknown here on both the sides. So what we will do कि हम दोनों साइड सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको नहीं ले जाएंगे, तो मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा. कैसे? Tan inverse, this is x, so we can write this as x by 1. So tan theta is perpendicular by base, so this is x, this is 1. तो hypotenuse हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे? h square equal to p square plus b square, x square plus 1. तो hypotenuse आ जाएगा आपका रूट में x square plus 1, तो it come out to be x square plus 1. तो इसको हम लिख सकते हैं cos of cos inverse, बिकॉज मुझे इन्वर्स cos में चाहिए, तो मुझे यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. cos होता है बेस अपॉन hypotenuse, so that means 1 by under root x square plus 1, right? Similarly इस राइट साइड को सॉल्व करते हैं. we have cot inverse, let this angle is phi. Tan theta is perpendicular by base, the cot theta will be base upon perpendicular. This is base, तो base upon 1 हो गया इसके नीचे, तो राइट हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं. तो h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इट कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1. तो h कम आउट टू बी रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट? तो इसको हम जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इज 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ये, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट? और ये पूरा क्लोज हो जाएगा. तो इन्वर्स इन्वर्स कैंसल आउट हो गया. सो वी कैन से दैट 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कम आउट टू बी 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1. अब स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. स्क्वायरिंग बोथ द साइड और इसको चले जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. 2x इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा -1/2. So this is your answer, means the value of x which satisfy this equation. Second one.
Third question, solve for x. This is quite a different one. So I will use a different technique here. So what will we do? We remove this inverse by putting x equal to sin theta. क्योंकि अगर हम x को sin theta put कर लेंगे तो inverse हट जाएगा. So for that put x equal to sin theta, right? So this equation becomes sin inverse 1 minus sin theta minus 2 sin inverse of sin theta equal to pi by 2, right? The sin cancel out, so we have sin inverse 1 minus sin theta minus 2 theta equal to pi by 2. 2 theta इधर ले आएंगे, pi by 2 plus 2 theta. जब साइन इनवर्स को इधर रिमूव करोगे तब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा 90. पाई बाय 2 मीन्स 90. 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा आपका, तो इट बिकम्स cos 2 थीटा. क्योंकि 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, वी हैव टू चेक 2 थिंग्स. वन की कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा कि नहीं होगा, 90 है तो चेंज होगा, एंड इन विच दिस क्वाड्रेंट इज, ये किस क्वाड्रेंट में है. तो पाई बाय 2 प्लस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका पॉजिटिव आंसर आ गया, राइट. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. 1 कैंसल आउट हो जाएगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, इट इज x. तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर. रीअरेंज कर लेते हैं. वन थिंग मोर, कई स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, एक्स कैंसल आउट कर देते हैं, बट आपको नहीं करना है. क्यों? क्योंकि वी ऑलवेज इन मैथमेटिक्स देयर इज अ रूल कि वी ऑलवेज कैंसल आउट दैट टर्म विच इज नॉट इक्वल टू 0. So we will cancel out x equal this x with this x only if it is given that x is not equal to 0, but it is not given, so we cannot cancel out that x, right? So हम इसमें x कॉमन ले लेंगे, तो we have two possibility, either x equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0 means x equal to half, right? Now we observe that x equal to half is not satisfy this equation. Let's check. So if we put x equal to half here, what will happen here? Sin inverse of 1 minus half, which become half, minus 2 sin inverse of half. तो it come out to be pi by 6. sin inverse of half pi by 6 पे होता है. Similarly here minus 2 pi by 6. तो pi by 6 minus 2 pi by 6 is minus pi by 6. लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन ये आया, बट राइट साइड पे तो pi by 2 दिया हुआ, इट इज नॉट इक्वल टू pi by 2. तो ये रिजेक्ट कर देंगे कि x इक्वल टू हाफ नहीं हो सकता, रिजेक्टेड. ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, राइट. नाउ पुट x इक्वल टू 0. तो वैन x इक्वल टू 0 हम इसको पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड आ जाएगी साइन इनवर्स और 1 माइनस 0 विच इज 1, 2 साइन इनवर्स ऑफ 0. तो ये पाई बाय 2 पे होता है 0 पे, तो आपका आंसर पाई बाय 2 आ गया. राइट साइड आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन बेसिकली ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. यही हमें निकालना था. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट. सेम अप्रोच फॉलो करेंगे. साइन इनवर्स आ रहा है तो हम x को साइन थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि दो जगह साइन आ रहा है, राइट. तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो इट बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा. और हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं. साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा हमेशा पाई बाय 2 होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे इसको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, और x की जगह आ जाएगा साइन थीटा, राइट. ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 होता है, तो मैंने कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाली पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x. दिस साइन साइन कैंसल आउट, तो वी हैव थीटा. दिस इज ऑल्सो थीटा, इस थीटा को तो ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा साइन इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. इस साइन को उठा के इधर लाएंगे तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल पैरेलल बन जाएगा. देखिए 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. तो 90 अगेन 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा, तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस कराएगा क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा कर रहे हैं 2 थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. 1 कैंसल आउट हो जाएगा. साइन थीटा आपका x है, तो इसको ले सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0. अगेन वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x कॉमन ले लेंगे, इधर x 0 और x इक्वल टू हाफ. फिर से चेक करेंगे,
ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब x आपका 0 आएगा तो आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज़ 0 प्लस पाई बाय 2, और राइट साइड बन जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 0, और कॉस की टेबल में 0 आपका आता है 90 पे, तो यानी पाई बाय 2। तो इक्वेशन बैलेंस हो रही है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रहा है, यानी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। x इक्वल टू हाफ पुट करते हैं, तो जब आप लिखेंगे x इक्वल टू हाफ पुट करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ, तो इट इज़ पाई बाय 6। तो साइन 1 माइनस पाई बाय 6, तो 1 माइनस हाफ इज अगेन साइन इनवर्स ऑफ हाफ, तो ये भी पाई बाय 6 पे होता है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2 पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3। और राइट साइड देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, वो भी आपका पाई बाय 3 पे होता है। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड हाफ आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यानी यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन होंगे, प्रीवियस केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा क्योंकि उसमें x इक्वल टू हाफ जो था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, राइट। क्वेश्चन जनरली इस क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है कि वो क्या करते हैं, इस 2 को इस साइड ले जाके 2 टाइम्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। बट मैं इसमें क्या करूँगा, आई विल फॉलो अ डिफरेंट टेक्निक हेयर। सो व्हाट आई विल डू हेयर, पहले मैं यहाँ पे इस पर ना इस कॉर्नर पे 1 बना दूंगा बाय डिवाइडिंग ईच एंड एवरी टर्म बाय 2। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, आई एम डिवाइडिंग ईच एंड एवरी टर्म बाय 2 हेयर। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, ताकि एंगल भी सेम हो सके। तो वी नो अ प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b होता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है। तो हम इसको ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ x बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया आपका पाई बाई 4, और इस tan इनवर्स x को इधर लाओगे तो हाफ tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई 4 आ गया, और इधर आ गया आपका 3 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x बाई 2। रीअरेंज करते हैं तो 3 इधर पाई बाई 12, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई 6 इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2, राइट। सो tan पाई बाई 6 इक्वल टू x बाई 2, तो tan पाई बाई 6 होता है आपका 1 बाई रूट 3 इक्वल टू x बाई 2। तो यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 2 बाई रूट 3, और ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ये आपका नेगेटिव आ रहा होता और कंडीशन होती है x ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन। बट इन दिस केस वी हैव वन सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 2 बाय रूट 3, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्यूटोरियल, 6th क्वेश्चन, we have 2 tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cos x. So we will apply the formula of 2 tan inverse of x here, which is in terms of tan, so that tan cancel out हो सके। तो we know that formula for 2 tan inverse x is tan inverse of 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो हम ये यहाँ पे लगाएंगे कैसे, बाय एज्यूमिंग दिस एज x। तो tan इनवर्स ऑफ 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा 2 cos x को लिख सकते हैं 2 बाय साइन x। tan कैंसल आउट हो गया, तो वी हैव 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज साइन स्क्वायर x। 2 बाय साइन एक्स आ गया, 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। अगेन सेम ध्यान रखना है आपने कि अभी फॉर द टाइमिंग एक्स को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट श्योर द वैल्यू ऑफ एक्स कि साइन एक्स 0 है कि नहीं। बट यहाँ पे क्योंकि गिवन है तो उस केस में काट सकते हैं। बट राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ ताकि कैंसिल आउट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर ये एक्स 0 नहीं दिया होता तो फिर अप्रोच यही रहती है। तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को पहले इधर ला रहा हूँ, फिर इसका साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो आपका 2 ऑप्शन आ गई, या तो साइन एक्स 0 होगा या कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 0, बट ये गिवन है कि नहीं हो सकता, तो इट इज़ रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। Here we have cos x इक्वल टू साइन एक्स। हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं cos x और sin x इक्वल कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 पे। तो आंसर 45 आना चाहिए, नहीं तो इसको और क्लियर करने के लिए
कॉस थीटा इधर ले जाएंगे, साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, टैन थीटा की वैल्यू 1 होती है पाई बाय 4 पे, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर जो आएगा पाई बाय 4 आओ। और भी वैल्यूज आ सकती है बट हमें क्योंकि मेंशन नहीं है तो हम एक वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 पे होता है। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट।